Hi, welcome. Namaste. It is so good to be back uh, in the Karma in a Cup. Karma in a Cup has been a fantastic journey. Um, the purpose of Karma in a Cup was to help understand how Ayurveda and astrology they kind of combine together. What is the purpose of all these sciences? How old are these sciences? How these sciences have helped us, if they have at all helped us. So I think both Ayurveda and astrology are as old as history itself. Even the Western medicine world is kind of dependent on the learnings of human body, a lot of which has been derived by Ayurveda. And not only internal body, the energies of the planets around us, the energy of the nature around us, which astrology shares a lot about with us. In fact, today doctors say that immunity is something that is extremely important for us to fight from the COVID-19 virus. But then, is it a measurable thing? Can immunity be measured? Um, we'll get to know about the answer to this question when Dr. Richa also joins us, because collectively our purpose of Karma in a Cup was to kind of share with our viewers, give our viewers something interesting, something which is very much measurable for them, something that you can use in your daily life, understanding of which can be helpful to you. So I'm going to welcome now Dr. Richa to join us, and we'll take you through through that you can really measure something, or some upayas, certain rituals that are there that can help you live a very holistic life. Hello, Dr. Richa. How are you? I'm good. I'm good. How are you, Prerna? I'm good. So good to see you. Ever Thank you. smiling. I really like that. Same here. Thank you. So, Dr. Richa, I was just sharing with our viewers that our purpose of Karma in a Cup was to kind of give them information, help them live a life which is much more holistic, which is much more sustainable, in line with nature, because that is what intrinsically Ayurveda and astrology is. So, like we shared with them earlier, the spices, what spices according to their body type or according to their sun sign. This is a very important information, I think, for people to know. Then we shared about Prakriti and Vikruti, how we can kind of benefit from the inherent Prakriti we have, and how we can get over the Vikruti of certain energies around us. And then we shared with them about moon signs. So sun signs everyone knew. Moon signs was something very interesting. We shared with them. So that's what I was sharing. That today also our purpose would be to kind of leave them with something which is extremely beneficial for them, which is something that they can utilize. The knowledge of it only is enough for them to be aware, to live a very peaceful life. Not only peaceful, that's something that helps in them grow personally, professionally, emotionally, behaviorally. So all of that. I'm so thankful for you to kind of share your knowledge on this Thank, regard with the thank, viewers. thank you. So just starting on, I have spent a lot of time in the corporate training world, and they say in the training world that it takes about 66 days for you to build up any ritual that you want to build up, any practice that you want to develop within yourself. I think in both astrology and Ayurveda, it would be important for people to know that all of these upayas, or so everything that we are going to share will have measurable results, but it would require practice from them. It is kind of an amalgamation of both. There's no magic. It doesn't happen Yeah, like that. They have to yeah. be really kind of
patient, do it regularly, practice. So even if it is with spices, some spices that are going to impact you, you might start to feel that there is a difference in about 3 months of time. So it's a long duration that kind of helps you achieve what you want to do. So what do you have in store for us today, Doctor? सबसे पहली बात तो प्रेरणा, आज क्योंकि अभी हम लोग आज एक टेक अवे की तरह कुछ टिप्स आज मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि कोई भी उपाय जिसको आप कहते हैं, रेमेडियल पार्ट जो एस्ट्रोलॉजी का है, आज बेसिकली उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेमेडीज पर रहता है कि भाई ठीक कैसे होगा, ये सब तो है बट ठीक कैसे होगा। तो आज उसी पर मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे जरूरी है जानना कि जैसे आपने कहा कि आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिखाया गया था कि कुछ समय लगता है, ठीक है, कुछ भी बिल्ड करने में, कोई भी चीज, आप कोई सर्कल में जाते हैं या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो यू नीड सम टाइम टू एक्वायर दैट स्किल और टू बिल्ड दैट, यू नो। So I would say in astrology also, from 30 days to 60 days, किसी भी एनर्जी को आपसे कनेक्ट होने के लिए चाहिए ही चाहिए। एंड आपके कर्म के आधार पर ये दिन जो है, जैसे कि हो सकता है कि मेरा कर्मा का लोड हल्का है, तो हो सकता है मुझे रिजल्ट 30 दिन में ही दिख जाए, राइट, है ना। पर अगर किसी का हैवी लोड है तो हो सकता है उसको 90 डेज भी लग जाए, राइट। सो बेसिकली इट इज अ साइकिल ऑफ 30 डेज टू 90 डेज। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो कहता है 30 डेज टू 60 डेज में आपको कुछ ना कुछ फर्क अपनी जिंदगी में जरूर दिखने लगता है। बिल्कुल। और वो इसी पे ही बेस्ड है, बिकॉज आयुर्वेदा में भी इसी तरह होता है। आपके अपने दोषों को बैलेंस करने के लिए इतना वक्त लगता ही लगता है। सो जब आप कंटिन्यूअसली अपने उन दोषा को बैलेंस करने पे काम करते हैं, तो 30 डेज में यू विल स्टार्ट टू फील कि हाँ कुछ मैजिक हो रहा है। बट इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2 months फॉर यू टू कंप्लीटली से मेजरेबल रिजल्ट, राइट? या ओके, that's very interesting. So 66 हम मान के चलते हैं एक मैजिक फिगर है। अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से वैसे भी मैं आपको आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा ब्रह्मांड 3, 6, 9 की एनर्जी पर बना हुआ है। These 3 numbers are the most powerful number of the cosmos. Okay. 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं वही पूरी कॉस्मोस की संरचना करते हैं। सो आप अगर आप कहते हैं कि 108 मंत्र का जाप कीजिए, माला 108 की होती है ना, 108 काउंट कर लीजिए, 1 + 0 + 8 is 9, right? There are 9 planets. 9 planets, Navratri. 27 constellation, that is again comes to 9. Number 9. Yes. I've seen So lots of my friends, when they buy their car, they purposely want a number 9. So total should be number 9. Because 9 मतलब 9 जो होता है वो एक पूरे साइकिल का कंप्लीशन है। And in human life also, every 9 years you complete a cycle, and 10th year is a new beginning. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, आज का आप सबके लिए एक टास्क है, अपने जन्म की तारीख लिखिए और उसके बाद 9 साल ऐड करते जाइए। ओके। और फाइंड आउट कीजिए कि हर 9 साल के बाद क्या कुछ नया हुआ था।
ये तो इंटरेस्टिंग होगा, आई एम जी। श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड आप में से बहुत लोग, आई वुड से 90% लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा लग रहा है कि उस समय एक शिफ्ट आया था, एक साइकिल कंप्लीट हुआ था। सो 9 तो बेसिकली तभी मैंने कहा 30 days to 90 days का टाइम है, क्योंकि कोई भी साइकिल कंप्लीट होने में 9 आना ही चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग 30 to 60 days, तो वो भी 3 और 6 9 है। राइट। It's all 3 6 9 energy that is ruling the cosmos. राइट। तो अगर तो आई एम श्योर। आपके 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 जीवन में जो भी एनर्जी है, जो कंप्लीशन है, जो भी कुछ नया होगा, वो 3 6 9 पर ही जाकर आपको दिखाई देगा। सो 30 days, दिखाई 60 days और 90 days, एंड यू आर 90 देयर। days. Very interesting. Very interesting. I'm making a note so that later I can share this with the viewers ऑफ in the कोर्स यू group. शुड। This is very interesting. यस, Okay. ऑफ कोर्स यू शुड। Yeah. So that means people who have born on a combination or have a moon sign which is a combination of something which is divisible by 3 are the lucky ones. आई वुड नॉट से लकी और अनलकी, Okay. बिकॉज उसका पूरा कैलकुलेशंस है और सब है। बट आई वुड से यस, अगर आपका, देखिए जो हमारे मास्टर नंबर्स हैं उनमें जो 33 का मतलब मास्टर नंबर है, Okay. वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि उसमें 1 और 2 दोनों मिल गए हैं तब 3 बनता है। Right. सो 33 मास्टर नंबर इज अगेन द मोस्ट पावरफुल वन। Okay. अगेन दैट इज 6। 6. Right. 6 So we उल्टा have a सीधा। viewer who's saying, we have a viewer who's sharing that her date of birth is 9th December. So तो 9 and 1. आप 9th का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो जन्म लिया है आपने, तो आप अपने कार्मिक काफी सारे चक्र कंप्लीट करके एक ये नया सर्किल आपने लिया है इस जीवन में। सो Oh, 9, यस, एंड 9 नंबर जनरली गिवर होते हैं 9 वाले। बट अगर 9 की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो कई बार आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह भी हो जाते हैं। we have another viewer who's saying 19th June 1985. प्लीज यू गाइस कीप काउंटिंग, अपने आप जोड़िए। So keep adding 9 अपने date of birth में, आपको पता यस, चलेगा कि अपने आप कितना से जिस दिन आप पैदा So we हुए have, उसके बाद से 9 साल का हर साइकिल काउंट कीजिए, कुछ ना कुछ नया होगा। यस, good. That's very क्योंकि interesting. किसी दिन किसी अलग सेशन में ये काम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उपाय पर फोकस करूंगी, तो ठीक है, आज आप ठीक है। लोग अपने उपाय जरूर सुनेंगे। हाँ, ठीक है। सो ईयर 2020 हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऐसा ईयर हो जो 9 से डिविजिबल, मतलब 9 के उसमें आता हो उनके साल के लिए। नहीं देखिए क्या, हाँ, ऑफ कोर्स बड़ा चेंज होगा उनके जीवन में। हाँ, बहुत चेंज होगा। या अगर इस साल कोई 9 का साइकिल पूरा हो रहा है, मे बी आप 18 साल के हो रहे हैं, 27 साल के हो रहे हैं, 54 के हो रहे हैं, 40, वॉट एवर 9 से जो भी जाता है, आपके लिए कुछ हाँ, फर्क होगा, ऑफ कोर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके डॉक्टर, मूविंग ऑन, व्हाट डू वी हैव in terms of upaya that people can do and find the results? देखिए सबसे पहले क्या है कि उपाय के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। उपाय 4 तरह से किए जा सकते हैं। पहला है वर्शिप, ओके ओके। दूसरा है दान और डोनेशन, तीसरा है ऑनर, ओके चौथा है अवॉइड। ओके। किसकी वर्शिप करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, किसको ऑनर करना चाहिए, और क्या अवॉइड करना चाहिए। राइट। ये जो किसी व्यूअर ने कहा है कि ये 9 साल के बाद कुछ अच्छा होगा, हाँ जी। आई वुड से अंकिता जी, नो, इट्स नॉट नेसेसरी गुड। हो सकता है आपका पिछले 9 सालों से खराब समय चल रहा था,
हो सकता है अच्छे समय की बिगनिंग हो। अगर 9 साल पिछले बहुत अच्छे चल रहे थे, हो सकता है मीडियोकर समय की बिगनिंग हो जाए। राइट। आप किसी रोग से जूझ रहे थे, हो सकता है रोग ठीक हो जाए, या हो सकता है कोई रोग आपको हो जाए। आपकी नई नौकरी लग जाए या पुरानी नौकरी छूट जाए। एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट गुड, इट इज चेंज, इट इज शिफ्ट, इट इज कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। या कंप्लीशन ऑफ अ सो साइकिल। सो उपाय जो है 4 तरह के होते हैं: वर्शिप, डोनेशन, ऑनर एंड अवॉइड। राइट। ये तो एक तरीके से हमारा बिहेवियर हो गया डॉक्टर। इन चारों को अगर हम समराइज करके देखें, दिस इज समथिंग दैट वी वुड डू। सो उपाय ले देकर कहीं से कुछ मैजिक नहीं आ रहा है। ये वही है जो हम डेली अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक कर्मों में करते हैं। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने हमारे को पहले इतना गाइड किया था अपने दिनचर्या के ऊपर। सो आई थिंक नाउ नोइंग दैट कि ये हमारे को कैसे इम्पैक्ट करता है और उस रिजल्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो मोर। देखिए क्या है कि उपाय जब आप करते हैं तो आप कभी भी, आपको पंडित जी ने कहा 8 बार ये कर दीजिए, 5 बार ये खिला दीजिए, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। राइट। अगर आपको किसी प्लैनेट की एनर्जी अपने साथ जोड़नी या घटानी है, राइट। पूरी उम्र, यानी आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने होते हैं। इट इज नॉट दैट कि राइट। आपने 3 हफ्ते 2 हफ्ते और आपने कहा कुछ बदल नहीं रहा, मैंने बंद कर दिया। इट इज नॉट सो। लाइफ स्टाइल के चेंजेस के बाद ही असली असर दिखाई देता है। और मैं बिल्कुल। हमेशा कहती हूं कि दान तो कभी भी जब आप शुरू करते हैं तो आपको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की भी आशा जगाकर उसको बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। पूजा, वर्शिप भी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आप क्या बार्गेनिंग कर रहे थे ईश्वर के साथ? एक अगर आपको मैंने बताऊंगी अभी मैं, और आपने अपना इष्ट बना लिया, आपने अपना डेटी बना लिया, तो फिर ये नहीं होगा कि शनि की दशा में तो मैं पूजा कर रही थी, उसके बाद मैंने कहा इट्स ओके बाय बाय। नो। बाय। इतना ही कनेक्शन था हमारा, हमारा काम पूरा हो गया। तो वो नहीं करना है। राइट। लाइफस्टाइल में ही चेंज लाना है और इन उपायों को करते चले जाना है, फॉर होलिस्टिक ग्रोथ, फॉर मेंटल पीस, स्ट्रेंथ, गुड एनर्जी। तो ये राइट। आपको आज मैं जो बताऊंगी बहुत सिंपल बताऊंगी, पर वो लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। 30 से राइट। 60 दिन में, 90 दिन में जो थोड़ा बहुत फर्क आपको दिखाई देता है, दिखाई जरूर देगा, पर उसके बाद आप इसको अपनी एक आदत बनाइए एंड सी द डिफरेंस। बिल्कुल। आयुर्वेदा भी तो यही कहता है, अगर आपको अपने अपने जब तक दिनचर्या में रेगुलर फर्क नहीं करेंगे, रेगुलर अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं नहीं देते, देते। शॉर्ट टर्म रिजल्ट दे रहे। सो अगर भगवान से बार्गेनिंग करके कि आज 7 दिन या 9 दिन मैं व्रत रखने वाली हूँ, ये कर देना, उसके बाद भूल जाओ। या तो दैट इज व्हाट, ये मुझे काफी फनी लगता है प्रेरणा, कि आप मतलब एग्जैक्टली। नौ दुर्गा रखते हैं और उसके बाद आप अगले ही दिन पार्टी करते हैं। मैं सच बोलती हूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल, मेरे बहुत आपका सारे फ्रेंड्स हैं आपने जो अपने ऐसे बिलीव नौ आपने अपने 9 दिन के संयम को वेस्ट कर दिया। करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नवरात्रि की नवमी वाले दिन रात को 12 बजे घड़ी देख के वेट करते हैं। सो दैट इज नो पॉइंट। कोई फायदा नहीं है आपके उस 9 दिन का भी, आपने 9 दिन इफ यू वेस्ट कैन कर दिए। इससे तो आप 9 दिन वेस्ट। आराम से खाते पीते तो बढ़िया रहता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और अगर हम डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से भी देखें, आपने 9 दिन तक अपने बॉडी को सिस्टम डिटॉक्स को। किया अच्छे से। हाँ। सपोर्ट किया, सारे सारे सिस्टम्स को सपोर्ट किया, और सडनली रात को 12 बजे उनको इतना काम करा दिया, इतना काम करा दिया जिसकी उन्हें आदत नहीं है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी विच वे, है ना, चाहे आप रिलीजियसली देख लें या आप फिजिकली देख लें।
तो अब चलिए थोड़ा उपाय के ऊपर चलते हैं, हाँ और जी। मैं ग्रहों के हिसाब से बताऊंगी उपाय। Sure. हर ग्रह जो है वो 2 राशियां रूल करता है, Okay. और सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली हुई है रूल करने के लिए, Okay. बिकॉज सन इज द किंग Yes. एंड मून इज द क्वीन Right. इन द हायरार्की ऑफ द प्लैनेट। Right. तो जब आप देखिए राजा क्या करता है, उसने अपने लिए सबसे कम रखा है, 1 साइन, Right. और उसने सबको कहा आप लोग 2-2 देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। Right. सो सबसे पहले मैं बात करूंगी एरीज और स्कॉर्पियो, क्योंकि एरीज से शुरू होता है ज़ोडिएक हमारा। Okay. तो जिनकी भी Okay. राशि चंद्र राशि मेष या वृश्चिक है, एरीज या स्कॉर्पियो है, तो आपकी राशि के जो मालिक होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो मंगल होते हैं। Okay. सो आपके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आप दोनों लोगों के लिए ही एक जैसे उपाय होंगे, क्योंकि आप दोनों ही मंगल से रूल्ड हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपको वर्शिप की बात हो रही है तो यू शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान। हमेशा करना है, 30-60-90 दिन के बाद बंद नहीं करना है, लाइफस्टाइल से जोड़ लेना है, Right. ठीक है। वर्शिप करेंगे लॉर्ड हनुमान का। फास्टिंग कर सकते हैं ट्यूसडे की, दिस इज वेरी गुड फॉर एरियंस एंड स्कॉर्पियंस। Okay. Right. तीसरा काम जो कि काफी सरल है, व्रत वगैरह भी अगर नहीं कर सकते हैं तो आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, Right. और अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपके अंदर फर्क आएगा, ये मेरी गारंटी है। Right. मिरेकल्स हो जाते हैं। Right. आपको ऑनर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स और अपने भाई बहनों का। Right. तीसरी चीज, आपको ऑनर करना चाहिए अपनी भूमि का। मतलब भूमि का हम कैसे आदर कर सकते हैं? अपने नेचुरल रिसोर्सेस को खराब ना करके। बिल्कुल, मैं वही कहने लगी थी। ये भूमि जिस पे चलने के लिए भगवान ने आपको जिंदगी दी है, ये जो धरती है आपकी, इस धरती से जो भी पैदावार हो रही है, आप उस सारी चीजों का इज्जत करेंगे, मान करेंगे, खाना बर्बाद नहीं करेंगे, नेचर को किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो वही ऑनर करना हो गया भूमि। आपके लिए जो दान है, जो डोनेशन है, वो सबसे अच्छा हो सकता है अगर आप मंगलवार को ही मतलब मंगलवार से शुरू करें, हर मंगलवार कर सकते हैं। आप मंगलवार को कभी भी किसी भी गुड़, मसूर की दाल, हम्म। ये 2 चीजें अगर आप गरीबों को दे दें, किसी मंदिर में दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, अगर आप इसका थोड़ा थोड़ा दान करते रहते हैं तो आपका गुस्सा, आपकी इंपल्सिव नेचर, आपका शॉर्ट टेम्परामेंट, सब चीजें कंट्रोल में रहती हैं। राइट। किसी भी और शुभ, स्कॉर्पियो और एरीज होते ही बहुत ज्यादा गुस्से, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होते ही शॉर्ट है। टेम्पर जी, और किसी भी अच्छे काम को करने से पहले एक छोटी सी टिप है, अगर आप थोड़ी सी कुछ जैगरी गुड़ जो है थोड़ा सा मुंह में डाल के अपने किसी अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। सो हमारे घर में ये रिचुअल है कि आप घर पे से निकलने से पहले जरा सा कुछ मीठा वो दरवाजे के पास ही रखा हुआ, कि जाने से पहले आप इसमें से थोड़ा सा उठाइए, खाइए और फिर जाइए। दैट इज वेरी गुड, ये अच्छी चीज है, ठीक है। और एक छोटा सा जो एक उपाय कह लीजिए या एक थेरेपी है, लाफिंग थेरेपी। एरियंस और स्कॉर्पियंस को बाकायदा कुछ मिनट दिन में जोर जोर से हंसना चाहिए।
ये तो उनके जो साथ में रहते हैं लोग, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इतने शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हंसेंगे तो परिवार वाले भी खुश होंगे। और आपका भला होगा तो आप जरूर हंसेंगे, रोज हंसेंगे। बिल्कुल। Like my husband is a Scorpio and a short tempered. If he's laughing, that means we all are happy. That's it. So ask him, laugh daily. You are going to shine like star. Sure. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और आप देखेंगे कि ओवरऑल पर्सनालिटी में आपकी चेंज आने लगता है। Of course, of course. देखिए, और ये कुछ ऐसे ऐसे उपाय नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना है, जिसके लिए आपको बहुत कुछ भी ज्यादा नहीं, नॉलेज की जरूरत। ये सिर्फ छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस हैं। अगर आप इनको एस्ट्रोलॉजी से ना भी जोड़ें, तो भी अगर आप इसको इसी तो भी आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अगर आप कुछ मीठा खाते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप किसी काम से ही जा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज शुगर वुड बी वेल बैलेंस। देखिए यहाँ हंसना। पर ये एक बात बता देते हैं कि अगर किसी को शुगर है तो आपको जैगरी की जगह थोड़ा सा आप शहद खा सकते हैं, और आप खाइए मत, एक चम्मच थोड़ा सा आगे अपनी टंग पर लगा लीजिए। दैट विल गिव राइट। इक्वल बेनिफिट। तो आपकी शुगर है, आप इस बहाने गुड़ मत खाने लगिएगा प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात होगी वीनस की, जो कि रूल करता है हमारी नंबर 2, जो टॉरस जिनका साइन ओके। है, या लिब्रा, वृषभ राशि या तुला राशि अगर आपकी है, तो आपको अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। राइट। सबसे पहले आपको वर्शिप किसकी करनी चाहिए, गॉडेस लक्ष्मी। ओके। बिकॉज वीनस क्या है, लग्जरी है, इन लोगों को लग्जरी चाहिए ही चाहिए। टॉरस और लिब्रा बिना लग्जरी के नहीं रह सकते। इनका मोटो ही होता है लग्जरी अचीव करना, अटेन करना। एब्सोल्युटली। सो गॉडेस लक्ष्मी की वर्शिप करनी है। और अगर आप थोड़ा सा गुलाब का एसेंस, इत्र जिसको आप कहते हैं, अगर आप गॉडेस लक्ष्मी के पैरों पर लगाते हैं रोज, आपके आसपास लग्जरीज आने लगेंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप और थोड़ा रिलीजियस माइंडेड हैं या सोशल कॉज करने में बिलीफ रखते हैं, तो आप जो भी गाय पालने की जो स्थान होते हैं, तो वहां भी कुछ डोनेट कीजिए, या गाय की कुछ सेवा। आजकल लोग कहेंगे हम कहाँ जाएंगे गाय की सेवा करने। अगर मौका मिलता है, तो पशुपालन का कोई केंद्र है, कुछ है, तो वहां जाइए। आपको ऐसा करने से भी बहुत फायदा मिलता है करने से। दूसरी बात यह कि आपको रिस्पेक्ट किसकी करनी है, ऑनर किसका करना है, अपने स्पाउस का। अगर आप अपने स्पाउस अगर आप अपने स्पाउस का सम्मान नहीं करेंगे, आपके पास धन संपदा कभी नहीं आएगी। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्पाउस। अगर आपको दान करना है, वीनस देखिए महंगे ग्रह हैं, तो आप क्या दान कर सकते हैं, इत्र, सिल्क के कपड़े, डायमंड्स, जिसकी जितनी हैसियत है वो करे। राइट। दान आप लड़कियों को, कन्याओं को कर सकते हैं, और या फिर आप अपने स्पाउस को भी अच्छी गिफ्टिंग कर सकते हैं। वीनस इज ऑलवेज हैप्पी। राइट। यंग गर्ल्स, छोटी बच्चियां जो होती हैं, जिनको हम कंजक कहते हैं, जो नव दुर्गा में जिनको हम करते हैं, तो उनका सम्मान समय समय पर करते रहें। उनकी फूड और एजुकेशन का इंतजाम भी अगर आप करते हैं, तो यू आर ब्लेस्ड इमेंसली। अपने लालच ना करके अगर इंसान
अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में इन चीजों को अपना ले तो दुनिया से कितना अशांति खत्म हो जाए। बिल्कुल लड़कियों की इज्जत करना शुरू कर दें, परिवार में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें, बजाय जो डोनेशंस आप इतना बाहर देख रहे हैं अपने घर परिवार में करना शुरू करें, लोगों से प्रेम देखिए, संबंध। हमारे यहाँ जो भी कहा गया है ना, वो बहुत, जैसे कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ये क्या मतलब था इसका? एग्जैक्टली। कि पहले आप अच्छे अपने घर परिवार के लिए होइए, उसके बाद आप बाहर जाइए। बाहर से ये मतलब नहीं है कि सब कुछ घर में बांट दें, मतलब यह है कि बी गुड टू योर फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट, ऑफ कोर्स। अगर आप और एक आजकल यूनिट भी, मतलब सोसाइटी का एक यूनिट भी आप हैप्पी कर देते हैं ना अपनी फैमिली, तो आप 4 हैप्पी लोग बना देते हैं। बिल्कुल, और 4 हैप्पी लोग नहीं, आगे जाके आपके बच्चे जो फैमिलीज बनाएंगे वो वो भी भी एक हैप्पी। हैप्पी फैमिली होगी। बिल्कुल, ये इट गोज अ लॉन्ग लॉन्ग वे। और अभी जैसे सब एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एक दूसरे के काम की इज्जत की जाए, एक दूसरे का बिल्कुल रिगार्ड किया जाए, घर बिल्कुल। में जो कन्या है, घर में जो बच्चे हैं उनको पूरा प्यार और मोहब्बत दिया जाए। सो ये हमारे लाइफस्टाइल में ही है, तभी तो कहते हैं कि जितनी पुरानी हिस्ट्री है उतनी पुरानी ही आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी। ऐसे थोड़ी ना ये सारी चीजें हमारे डेली आदतों में शुमार हो गई है ना। और जिन लोगों कुछ भी बेसलेस नहीं है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, करते जाते हैं, तो टेक माय वर्ड्स कि आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस पाते हैं। राइट, एंड टुडे, एब्सोल्युटली। आज हम लोगों ने बात ही की थी कि हम एक होलिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, राइट, है ना। हम एक किसी एक एस्पेक्ट को अच्छा बनाना नहीं चाह रहे हैं, हम आपकी ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो वो तभी बिल्कुल। होगी जब आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चीजें ऐड कर रहे होंगे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो अब तीसरा जो मतलब नंबर है वो मर्क्यूरी का है, बुध का है, एंड इट रूल्स 2 साइंस, वर्गो एंड जेमिनाई। मिथुन राशि और कन्या राशि अगर आपकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वर्शिप किसकी करनी चाहिए? लॉर्ड विष्णु। कन्या तो नहीं होगी ना, कन्या तो नहीं होगी, वर्गो और कन्या, जेमिनाई। कन्या अच्छा। और मिथुन। वर्गो इज कन्या एंड जेमिनाई इज ओके मिथुन। ओके। सो वर्शिप करनी है आपको लॉर्ड विष्णु की। विष्णु सहस्त्र नाम सुने या पढ़ें। अगर आप इवनिंग में लगभग इसी टाइम पर रोज विष्णु सहस्त्र नाम सुनते भी हैं, तो भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। श्रवण का भी बहुत महत्व है, अगर आप सुन भी लेते हैं और अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ। राइट। गिफ्ट क्या कर सकते हैं किसी को? आपकी फादर की सिस्टर्स, आपकी सिस्टर्स, आपकी सिस्टर की बेटी, बहन, बुआ, बहनें, यानी कि घर की बेटियां, अपनी बेटी भी हो सकती है। इनको आप सिल्वर के ऑर्नामेंट्स गिफ्ट कर सकते हैं। नोज पिन अगर आप सिल्वर की गिफ्ट करते हैं इन लोगों को, तो आपकी लाइफ से बड़े ऑब्स्टिकल्स हट सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत और इजी बात है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए, कि आप अपने राइट हैंड में एक पीला धागा भी हमेशा बांध कर रख सकते हैं। बट उसकी कंडीशन है कि जब वो गंदा हो जाए तो उसको बदलिए, दोबारा से फ्रेश एक अच्छा बांधिए येलो थ्रेड, वो भी राइट, आपको विष्णु की कृपा दिलवाता रहता है। राइट। सो माय किड्स आर लिसनिंग, और वो अपना नोज पियर्सिंग कराना चाह रहे थे, तो वो बोल रहे हैं अभी कि मामू को बोलते हैं वो हमारा नोज नोज पियर्सिंग कराएंगे और बिल्कुल हमें चांदी का, बिकॉज मामा इज बिल्कुल। जेमिनाई। सो दोनों दौड़ गए हैं फटाफट फोन करने के राइट, लिए। क्योंकि मामा का भी फायदा हो जाएगा और उनका काम हो जाएगा बच्चियों का। एक और काम, वेरी। डोनेशन, डोनेशन में आप बच्चों को
नीडी बच्चों को एजुकेशन का, स्टडी का जो मटेरियल होता है, कॉपी, किताबें, पेन, इसकी डोनेशन आप करते ही रहें, बहुत अच्छा होता है लाइफ में। ठीक है। उनको या तो आगे शिक्षा का, नहीं, आप कहिए। या तो शिक्षा का सामान और या फिर फ्रूट्स का दान भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। गरीब बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं, शिक्षा का सामान दे सकते हैं। अवॉइड क्या करना है? एल्कोहल। एल्कोहल अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बुधवार को और बृहस्पतिवार को एल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। वैसे हमेशा भी ना करें वो भी अच्छा है, बट इट्स नॉट माय प्रीचिंग, इट्स अप टू यू। ये काम अगर आप करते हैं, मिथुन और कन्या राशि वाले, जेमिनाई एंड वर्गोस, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे करके आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आपके घर में अच्छी होती है, आपके बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी की पढ़ाई लिखाई का ध्यान दे रहे हैं तो जेन्युइन सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आपके घर पे आएगा ही आएगा, बिकॉज उसी तरीके का फील आपके घर के बच्चों पर भी तो आए। इफ यू आर, वो भी देखेंगे कि आप जाकर दूसरों के बच्चों को पढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी पढ़ाई इज इक्वली इम्पोर्टेंट, हमें भी उतना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान। देखिए, वैसे भी किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो हमेशा ही ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ते हैं, प्रीचिंग से नहीं। नहीं, एब्सोल्युटली, whatever they observe, they follow that. आपके कहने से नहीं करते वो। So हमारे व्यूअर्स को डॉक्टर सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर सेइंग इट्स अ लवली सेशन। थैंक यू so much. Yeah, the purpose also is the same, that you find it very interesting and knowledgeable, so that you are kind of able to use these for your benefit. Of course. Yes. अब जो है आपकी चंद्रमा की बात होगी, क्योंकि नंबर 4 कर्क राशि जो है, अगर आपकी कैंसर मून साइन है, कर्क राशि है, तो आपका रूलर मून है। मून बेसिकली माइंड है, तो आप लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक पहला प्रैक्टिकल उपाय है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें। नंबर 1, थिंक फ्रॉम योर माइंड इंस्टेड ऑफ योर हार्ट। कैंसर के लिए एक बहुत बड़ी बात, वर्शिप किसकी करें? गॉडेस पार्वती। गॉडेस पार्वती की आराधना, गौरी जिनको हम कहते हैं, गौरी की आराधना बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग, कर्क राशि वाले लोग, गौरी, शंकर, रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये भी इनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इनकी मेंटल स्टेट भी अच्छी रखता है, इनकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी रखता है, बहुत सारी बातें करते हैं। दूसरा उपाय के तौर पर इनके लिए एक उपाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई वुड से मल्टीविटामिन की डोज है, फिर और कुछ नहीं करना है। पानी और दूध की बराबर मात्रा हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाइए। मेक दिस अ रिचुअल ऑफ योर लाइफ, यू विल नेवर सी अ फेलियर। या मेंटल आपकी जो बार बार आपको इमोशनल सेटबैक्स या आप परेशान होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आप मंडे को चढ़ा सकते हैं, फुल मून डे पर, न्यू मून डे पर, ये आप जरूर चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। रिस्पेक्ट किसकी करनी है आपको? कैंसर वाले लोग, आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने मदर की और पानी की। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाटर एनर्जी। जितनी प्यास है उतना पानी ले, अपने ग्लास में पानी झूठा ना छोड़ें फेंकने के लिए। आपके घर में जो लोग आते हैं, बॉटल लाकर रखिए और उनको
पोलाइटली कहिए कि जब भी आपको जरूरत हो, यू कैन पोर सम वाटर एंड हैव इट। सो हम लोगों ने ये रिचुअल बनाया हुआ है कि आधा ग्लास ही पानी सर्व किया जाएगा, कोई भी घर पे आएगा तो पानी वेस्ट नहीं होना। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम रन करते हैं अपनी सोसाइटी में, जहाँ पर हम वाटर हम सेव करने की टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। इनफैक्ट हम लोगों को अभी एक अवार्ड भी मिला है वाटर वाह, कंजर्वेशन वाटर फूड्स एनजीओ की तरफ से, जो जो जिसने मतलब हम लोग वाटर वॉरियर्स या ब्लू वॉरियर्स कहते हैं अपने आप को। वेरी गुड। और हमारे यहाँ पर बच्चों की एक वाटर ब्रिगेड है जो सुबह 5:30 बजे से उठ जाती है, और जिसके घर पे भी पानी वेस्ट हो रहा है उनको फोन करके बताया जाता है आपका टैंक ओवरफ्लो कर रहा है। सो पानी तो एक ऐसी जरूरी चीज है जिसको बचाना ही बचाना है, देखिए ये इर्रिस्पेक्टिव कि आपका टाइम क्या है। राशि क्या है। देखिए हम एब्सोल्युटली। क्या है कि हम हमेशा कहते हैं कि उस जब हमारा शायद पहला या दूसरा सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पांचों तत्व राइट। किस तरह जुड़े हुए हैं, तो जब आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन है, वॉट एवर, तो आप ग्रहों को वैसे ही प्लीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। हमारी कैंसर एक वालों के व्यूअर लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर वाले पानी की कम से कम आप कोई भी पानी की का सम्मान ना करें, कैंसर वाले बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल हमारी एक व्यूअर है जो कह रही है कि उनके फादर पॉलिटिशियन है और उनका सन साइन लीब्रा है, एंड शी इज गोइंग टू शेयर द उपाय विद हिम। सो आई एम श्योर उनको बेनिफिट हो। जरूर एंड जरूर शी इज कीजिए आप, और आई थिंक बहुत फायदा होगा उनको, जरूर करवाइए। एब्सोल्युटली राइट। एंड शी अब इज ऑल्सो सेइंग थैंक यू कि उनको ये चैट हमारा कर्मा इन अ कप बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लगता है। हमारा भी वाह, पर्पस यही है कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आपको एक ही जगह पर पता चले कि आपको जिंदगी में किन किन चीजों की जरूरत है जो आपके आसपास ही है, और आप उनको कैसे इन नेचुरल चीजों को, नेचुरल एनर्जीज को अपनी लाइफ को बेनिफिट करने में यूज कर। ऑफ कोर्स। So, राइट so राइट। very good. I think it's very nice and it's very encouraging कि जब हमारे व्यूअर्स हमारी बात को पसंद करते हैं तो it gives immense pleasure, you know, कि लोग हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरा प्रयास भी यही है। सो अब बात होगी नेक्स्ट मून साइन जो कि सिंह है, लियो मून साइन। सिंह राशि अगर आपकी है तो आपके लिए आपको वर्शिप किसकी करनी है? सूर्य की। आपको सूर्य की आराधना करनी है। आप सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और आपको पानी पीने के लिए अगर आप कॉपर वेसल का यूज करते हैं, या अदरवाइज भी अगर आप कॉपर वेसल में खाना खाते हैं या कॉपर वेसल में पानी पीते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यू गेट द एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम कॉपर। सूर्य की धातु जो है वो आपकी कॉपर होती है। क्या नहीं करना है आपको? कभी भी गवर्नमेंट के बनाए किसी रूल को ना तोड़ें, कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल को ब्राइब ना दें। सिंह राशि वाले लोग, आप राज्य का, सत्ता का, सरकार का सम्मान कीजिए। अपने घर में, क्योंकि घर की सत्ता पिता चलाते हैं या फादर घर के बड़े हैं। चलिए, अब मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं दूंगी। ब्रेड विनर फादर आजकल नहीं है, केवल माँ भी ब्रेड विनर हो सकती है, बट चलिए उम्र में या जो भी है, तो पिता का सम्मान घर में करें, सूर्य का आराधना करें, गवर्नमेंट की किसी भी रूल को आप ना तोड़े कभी भी, और कभी किसी को ब्राइब ना दे। गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब मत दीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए। ईट लेस सॉल्टी फूड्स, या सॉल्टी फूड खा रहे हैं तो उसमें सॉल्ट की मात्रा कम होनी चाहिए।
और अगर आप संडे को अवॉइड करते हैं सॉल्ट, तो आप बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से भी बच जाते हैं। दान अगर आपको करना है तो आप अनाज का दान कीजिए, फूड का दान कीजिए। आप गेहूं, दाल, चावल, वैसे गेहूं सबसे ज्यादा होता है, बट आप और भी अनाज दान कर सकते हैं। और आपके वेरी लिए एक जी, आपके लिए एक और बहुत सिंह राशि वालों, आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहीं भी जब जा रहे हैं किसी भी शुभ काम को करने, किसी इंटरव्यू में या कुछ भी, तो आप एक तो थोड़ा शहद खाएं, आधा चम्मच, एक चम्मच, एक ड्रॉप। और जब किसी भी ऑफिस में एंटर करते हैं तो आप अपने सीधे हाथ से उसका दरवाजा पुश कीजिए और सीधा पैर पहले आगे बढ़ाइए। ये आप करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। आई साइड का ध्यान रखिए। आई साइड, अक्सर थोड़ी सी आई साइड खराब होने का डर रहता है, तो आप आई से रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर करते रहें। अब बात होगी एक बहुत बड़े ग्रह की, बृहस्पति, जिनको हम प्रिजर्वर कहते हैं, और जिनका जो पोर्टफोलियो है ग्रहों में वो सबसे बड़ा है। He rules right. your progeny, he rules your wealth, he rules your, expansion, बहुत सारी शादी। सो जुपिटर का कार्य सबसे क्षेत्र सबसे बड़ा है। और इनसे जो Right. रूल दो राशियां हैं वो है सजिटेरियस एंड पाइसेस। यदि आपकी धनु राशि है या मीन राशि है तो आप बृहस्पति से रूल्ड हैं। और आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो लॉर्ड ऑफ द राशि है वो प्रसन्न रहे। तो आपको सबसे पहले पूजा किसकी करनी है, वर्शिप किसकी करनी है, तो मैं कहूंगी गुरु की वर्शिप करनी। आपके गुरु, मेंटोर, टीचर्स, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो आपके लिए भी विष्णु की आराधना अच्छी होती है। नेवर एवर इंसल्ट एनी गुरु और टीचर, बहुत हार्मफुल होता है। Right. घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, इसके लिए आपको रोज थोड़ा सा कपूर, कैम्फर अपने घर में जलाना चाहिए। Right. चैरिटी या दान जो आपको करना है वो सबसे अच्छा होगा कि अगर आप रिलीजियस प्लेसेस में दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या तो रिलीजियस प्लेस में करें या जो गुरुकुल वगैरह होते हैं जहां पर नीडी बच्चे पढ़ाए जाते हैं, सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए, वहां पर आप फूड का दान कर सकते हैं, उनके खाने का इंतजाम कर सकते हैं, शिक्षा की सामान भी दे सकते हैं। सो जहां बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल या रिलीजियस प्लेसेस, इन पर आपको, यहाँ पर आपको चैरिटी करनी चाहिए। फूड की कर सकते हैं, शिक्षा की कर सकते हैं, खुद वॉलंटियर करके आप पढ़ा भी सकते हैं वहां जाकर। Right. सो ये भी अगर एक बहुत डॉक्टर अच्छा होता देखा है। जाए तो ये बहुत सारी आदतें, ये जो बहुत सारी बातें आप शेयर कर रहे हैं, अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखें तो हर एक इंसान ये सब कुछ किया करता था। हर एक इंसान वॉलेंटियर किया करता था। साल में एक बार गुरुकुल में जाना मैंडेटरी होता था विद फैमिली। आप जैसे हम लोगों की फैमिली में एक बार ही साल में हनुमान जयंती पे पूरी फैमिली गुरुकुल जाएगी, वहां देखेगी वो लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, उनको किस तरीके की सपोर्ट की जरूरत है। सो दैट देयर इज ग्रैटिट्यूड, आपको जो मिल रहा है उसके लिए आप इज्जत कर रहे हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था जहां पर आप घर के बड़ों की हमेशा इज्जत कर ही रहे। द वे देखिए रिचुअलिस्ट। देखिए देखिए प्रेरणा जी, हमने तो आपको शुरू से यही एक बात कही है कि सारी परेशानियों की जड़ यही है इस समय आजकल, क्योंकि हम अपना मूलभूत जो स्वभाव होता है, हमारी
कोर इंस्टिंक्ट, उनको भूल रहे हैं। उनको भूल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे जब आप अपने बेसिक्स से जुड़ जाते हैं, रूट से जुड़ जाते हैं, कोर इंस्टिंक्ट्स नहीं छोड़ते हैं। हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बीइंग अ वुमन आई एम सेइंग दिस। मेरे घर में पीछे एक चिड़िया ने एक नेस्ट बनाया है एंड शी हैज गिवन बर्थ टू टू ब्यूटीफुल, छोटे बच्चे निकले हैं आज आज ही मेरे घर में। एंड आई एम सीइंग द एफर्ट ऑफ दैट मदर। यस। शी इज सर्विंग हर चिल्ड्रन टायरलेसली। आज वो सुबह से चिल्ला रही है बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए। आई वॉज फीलिंग पिटी फॉर दैट बर्ड कि इसको मैं पानी दे दूं, क्या कर दूं। शी इज सो वरिड। ये एक माँ की कोर इंस्टिंक्ट है। एब्सोल्युटली। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि माएं भी कहीं ना कहीं ममता से दूर हो रही हैं। They are fighting for their rights. This is very good. Fight for your right. But if you choose to be a mother first. बी अ मदर, एब्सोल्युटली। घर का माहौल खराब होता है क्योंकि आप अपनी कोर से दूर जा रहे हैं। राइट। पति जो है उसका कोर है कि परिवार का पालन पोषण करे, पुरुष का ये कोर है। आप पत्नी को ही लड़ रहे हैं कि तुम कमाओ, तुम बाहर जाओ, तुम हमको आधा पैसा दे दो, तुम ये कर दो। So whenever we will go away from our core instincts, we are going to be the sufferers. एब्सोल्युटली। बहुत जरूरी है कि आप अपनी कोर से दूर कभी भी मत जाएं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स को संभाल कर रखें। बिल्कुल। सो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या कहती है कि किसी भी गुरु का असम्मान मत करो। हाँ, बिल्कुल। और आप कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं हमारे घर में ऐसा नहीं है वैसा। यस, यू आर नॉट मेंटेनिंग द प्रोटोकॉल ऑफ द लाइफ। एब्सोल्युटली। सो आपने जितनी भी चीजें बताई, आपने अभी जितने भी हमें उपाय बताए, वो सारे ह्यूमन बिहेवियर है जो कि एक एक्सेप्टेबल ह्यूमन बिहेवियर है जो हर एक में होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो स्कॉर्पियो है या सेजिटेरियस है या लिब्रा है या कुछ भी है। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वन शुड लिव बाय। These are just these things, very simple things. So अगर आप चाहे मदर हैं, फादर हैं, फैमिली में किसी भी इक्वेशन में हैं, आप जब खुद ये बिहेव नहीं करेंगे और आगे सिखाएंगे नहीं तो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। ये एक आई थिंक बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्हाट अबाउट सेपरेटेड और डिवोर्स्ड पेरेंट्स। राइट। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि जो भी घर का ब्रेड विनर है, अगर आप सिंगल मदर हैं, यू आर अर्निंग ब्रेड फॉर योर किड्स, आप उस घर की पिता हैं, सूर्य हैं आप उस घर के। आपके बच्चों को आपकी रिस्पेक्ट एक फादर की तरह करनी चाहिए। राइट। सो मतलब यह है कि जो भी यहां पर आई वुड से जेंडर मायने नहीं रखता। Whosoever is running और खास करके जो लेडीज हैं अगर, और वो सेपरेटेड हैं एंड दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर किड्स टू ग्रो एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, आई जस्ट सैल्यूट दोज वुमेन। Absolutely. वही मैंने जो अभी बताया कि मैं उस चिड़िया को आज सुबह से देख रही थी। आप सेपरेटेड जो मदर्स हैं या जो भी है या फादर्स भी हैं, अगर वो कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली, तो दे आर लाइक दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट देन एनीवन। Absolutely. Absolutely. Yeah. And challenges of life, बहुत बार चाहे वो सिंगल पेरेंट्स हो या जॉइंट फैमिली में हो,
हर एक को सिमिलर ही आते हैं, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू से सिमिलर आते हैं, बट everyone is going through some challenge or the other. But at least then there is some support of the family members, at least from your better half. But then for single parents, be it mother or father, anybody, the dual responsibility comes on their heads. Of ब्रेड course. विनर तो होना ही है, खाना तो लाना ही है इमोशनल परिवार के सपोर्ट, लिए, लेकिन उस इमोशनल परिवार सपोर्ट का भी। बिल्कुल विचार और किस तरीके से आचार विचार और किस तरीके का आपने देना है बच्चों को इज्जत और बढ़ावा, वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड। सो रियली तो वेरी वेरी ये जो बात, डिफिकल्ट एंड और एक बात मैं आप आज सारे दर्शकों से, आपसे भी प्रेरणा, ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक ज्योतिष को अगर समझना है, ग्रहों को समझना है, तो ग्रहों को अपने से अलग मत मानिए। राइट दे आर सेलेशियल बॉडीज, दैट इज ट्रू, राइट बट उनका हमारी बॉडी पर या हमारे मन मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, माइंड पर बहुत गहरा असर होता है। दे रूल अस बेसिकली। तो अगर आपको सूर्य को समझना है तो आप अपने पिता को समझिए, आपको बृहस्पति को समझना है आप अपने टीचर को समझिए, वीनस को समझना है स्पाउस को समझ लीजिए, आप वीनस को समझ जाएंगे। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। Yeah, what you said, staying away from core will cause pain, so don't these parents deserve happiness? No, no, what I am saying, I think you misunderstood. A mother who's earning bread and butter for the family, who says that she is not loving the kids? That's what I said कि आप तो डबल एक्युलेट्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि मदर तो आप अपनी कोर आपने नहीं छोड़ी है, वो आपकी एक मजबूरी हो सकती कि अगर आपको निकलना ही पड़ रहा है घर से बाहर तो वो आपकी, बट आई एम श्योर उस वक्त आपका जो माइंड है ना वो और ज्यादा आपके बच्चों के करीब होता है। मैंने देखा है ऐसे में जो एनर्जी, yeah, just a minute, going away from your core is when you neglect your child or children without any cause. If a single mother is there, उसको बच्चों को खाना देना भी उसकी ड्यूटी है, वो 24 घंटे उनके साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अच्छी मां नहीं है। They are better mothers. And yes, why not? हैप्पीनेस आप सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आपके लिए टेस्ट एंड ट्रायल्स जो है लाइफ के वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं। बट अगर आपने अपने बच्चों के साथ अपना रोल, क्योंकि आपको दोनों रोल निभाने पड़ते हैं, भले ही पिता है तो उसको माँ का और माँ है तो उसको पिता का, तो आप जरूर कभी ना कभी आपसे कोई रोल थोड़ा बहुत निग्लेक्ट जरूर होगा। आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन, you are not superhuman, you know, and kids are going to understand and they are definitely going to make you happy one day, I'm sure. Absolutely. Yeah. So अब जो लास्ट हमारे एक ग्रह बचते हैं और वो शनि है। शनि 2 राशियां रूल करते हैं, वन इज कैप्रिकॉर्न, अनदर वन इज एक्वेरियस। अगर आपकी मकर राशि है या कुंभ राशि तो आपको जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं, लाइफ में क्या शामिल करना है। सबसे पहले आपको वर्शिप करनी है लॉर्ड शिवा की। लॉर्ड शिवा इज द ओनली गॉड जो कि शनि की जो टॉक्सिक थोड़ा सा इंपैक्ट है उसको ले सकते हैं। शनि ने खुद भी शिव की बहुत आराधना की थी, इसलिए शिव की जो भी आराधना करता है शनि उससे प्लीज्ड होते हैं। सो आपके लिए वर्शिप करने के लिए लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड शिवा की पूजा करें आप। 13th डे ऑफ द मंथ
We That just is have called, 20 seconds remaining. that is We no, just have that, 20 seconds. okay, so that is called त्रयोदशी. तो उस दिन आप अपना दान वगैरह करें और सोसाइटी को बेहतर. हाय, आज की डिस्कशंस में टाइम का पता ही नहीं चला. वी spent about an hour talking with Dr. Shukla, wherein Dr. Shukla shared with us how knowing your moon signs and knowing what all you should be doing in your daily life, what all kind of daily rituals and routines you should have, so that you can live a life which is very holistic, which is very powerful for you, and strength to grow in your life professionally and personally both. We were talking about the sun sign when we got disconnected, the sun sign Capricorn, Shani, and Moon Dr. sign. Shukla was, प्रेरणा moon moon sign, sorry, sign. right, moon sign Shani, Capricorn and Aquarius, ruled by Aquarius. Shani, right. हाँ. So Dr. तो Shukla was sharing सब, with us, and we got yeah, disconnected. So we are yeah, going to just complete that conversation. yeah. Yeah. So God is, I mean, Shiva to be worshipped. Right. जो त्रयोदशी का दिन होता है, ये 13th डे ऑफ द मंथ 2 बार आती है महीने में. अगर इस दिन आप लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं तो सैटर्न बहुत ही ज्यादा प्लीज्ड होता है. और एनीथिंग, जो भी काम सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, दैट वर्क गिव्स very positive results for Capricorn and Aquarius people. Any type of charity, चाहे आपके लिए फूड का दान हो सकता है, आपके लिए, आप किसी की लाइफ में कोई भी दुख दर्द है, जब आप उसको दूर करते हैं तो सैटर्न आपसे प्लीज होता है. आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए, मकर और कुंभ लोग राशि वाले लोगों के लिए, कि आपको इस वर्ल्ड को ना बेटर बनाने का चार्ज दिया गया है. बिकॉज योर रूलर इज सैटर्न, और वो चाहता है केवल और केवल चैरिटी, गुड लाइफस्टाइल, जहां पर कंपैशन हो, जस्टिस हो, कोई भी इरेगुलरिटी ना हो. तो आपको ये सारे काम करने हैं. गुरुओं की, ब्राह्मणों की, अब ये कास्ट वास्ट शास्त्रों में लिखा जाता है. आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. हाँ, अच्छे लोगों का सम्मान कीजिए. अपने से जो नीचे लोग होते हैं, मतलब नीचे से कोई नीचा या ऊंचा नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारा माली है, हमारी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, आप इनको अच्छे से ट्रीट करें. उनको आप अपने जैसा माने और आप देखें कि आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाता है. यू कैन पे विजिट टू ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ब्लाइंड स्कूल्स. इस तरह के काम आपको करने चाहिए. और एक नियम बना लीजिए, कैप्रिकॉर्न्स एंड एक्वेरियस, हर अपने बर्थडे पर आप किसी ओल्ड एज होम या किसी ऑर्फनेज में जाएंगे और थोड़ी सी सर्विस करेंगे. पूरा साल देखिए कितना अच्छा जाता है. Absolutely, absolutely. So, Yeah. Dr. Shukla, again, coming back to the same thing. So, joint families में पहले हर एक राशि का इंसान घर में रहता था. So, I think इसी वजह से ये जो कुछ रिचुअल्स जॉइंट फैमिलीज में हमने तो बहुत कॉमनली देखे हैं, उसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज इतनी प्रॉस्पर भी करती थी, बिकॉज हर एक इंसान को सब कुछ कर रहे हैं. सो उसका कोई भी प्लैनेट अगर अनरूली है, अगर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, दे वुड नॉट इवन नो. वो अपने आप ही ठीक होता जा रहा है, अपने आप ही उनके कर्म जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं. सो मे बी नेक्स्ट 9 years के बाद उनको उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बिल्कुल. हम लोगों ने पहले एपिसोड में ये बात की थी कि दैनिक कर्म अगर अच्छे से करते हैं तो किसी उपाय की आवश्यकता होती ही नहीं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बस ये आपके थोड़े से बिहेवियर वाला और लाइफस्टाइल चेंज वाला आज का
सेशन था. And if you do that, you imbibe these qualities, if you practice these practices, life is better. Absolutely. बिल्कुल सही कह रहे हैं. These are very small things. So अगर आज की लाइफ में भी हम इसको जोड़ें, जो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं, और जहां पर हम बहुत सारे तरीकों से मॉडर्न लाइफस्टाइल जीनी कैसे है वो सीखते हैं, वहां पे वो बात कर रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं तो से ग्रैटिट्यूड, से योर प्रेयर्स, exactly the same thing that we have been doing. They would also say spread love, be happy, spread happiness, join laughter club. So ये सब कुछ तो daily ritual ही है. This is what we should be every day as it is doing. Right. That's it. Absolutely right. So very interesting. आपके साथ जितनी भी बातें हमने की हैं डॉक्टर शुक्ला, they are so interesting. ये हमारी ट्रेडिशनल विजडम पे कॉन्फिडेंस देती है. मतलब एक्चुअली हर बार आपसे बात करने के बाद थिंक बैक करो तो याद आता है, हाँ ये तो किया करते थे. दिस वाज वेरी कॉमन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप. मतलब जब बचपन में जॉइंट फैमिलीज में नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बहुत. तभी मैंने कहा कि ग्रहों से डरे नहीं. एक हवा नहीं है, ज्योतिष अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है. Absolutely. सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान बनिए. और जहां तक बात सफरिंग्स की होती है, फेलियर्स की होती है, वो आपकी आई वुड से कार्मिक पैटर्न के हिसाब से आपको मिलती है. दैट यू हैव टू एक्सेप्ट ग्रेसफुली, आई वुड से. और अगर आप अपनी किसी भी सफरिंग की वजह से अपने लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं या अपने फेथ को कम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं. Absolutely. Very true. जब आप वहां बार्गेनिंग के मोड में आ जाते हैं, अब मैं नहीं करूंगा, मेरा ऐसा नहीं हुआ, दैट इज द टाइम यू लूज एवरीथिंग. उसी समय आपको अपनी फेथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग करने की. बिकॉज उस वक्त आप एक ऐसे कमजोर मोड पर हैं, तब और भी ज्यादा जरूरत है. अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो आप कमजोर मोड पर खड़े हैं, जहां आपको अंदर से समझ में आ रहा है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, गलत है, या आप फील कर पा रहे हैं कि अब मेरे साथ कुछ इस तरीके का होने वाला है जो मुझे बहुत पसंद नहीं है. वहीं पे आप भगवान के साथ ये मोल भाव करने लगते हैं. एंड दैट्स द टाइम टू काइंड ऑफ या मतलब अपने को अपने ऊपर विश्वास रखिए कि अगर मैं अच्छा हूं. मैंने कहा ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में. एक सिंपल से सिद्धांत पर चलाइए, मैं जैसा करूंगा मेरे साथ वैसा होगा. मैं अच्छा करूंगा मेरे साथ अच्छा होगा. और अगर कुछ बुरा हो रहा है वो मेरे ही कर्मों के हिसाब से हो रहा है. और जब ये दंड या ये जस्टिस पूरा हो जाएगा, आई विल बी अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन. Absolutely. That's it. इतनी छोटी सी सिंपल अंडरस्टैंडिंग लाइफ में रखिए. लाइफ इज ब्यूटीफुल ऑलवेज. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. चलिए, आज का सेशन काफी अच्छा रहा और लंबा भी हो गया आज. ऑफ कोर्स काफी लंबा हो गया, बट हमारा पर्पस था कि हम लोगों से शेयर कर सकें जिस ऐसी चीजें जो बहुत सिंपल हो, जो उनके लिए डेली लाइफ में इम्बाइब करना आसान हो, और उससे उनको कुछ बेनिफिट भी हो सके. सो आई थिंक आई एम श्योर कि अगर आप लोग ऐसे करते हैं और इस एक सिंपल प्रिंसिपल पर अपनी लाइफ को चलाते हैं, without shaking your faith in yourself, I would say. Absolutely. Everything is fine. Taken care of. Absolutely. I think it's okay. Signing off. Yeah. And if people want to know more, they can always reach to your handle, Astrology by Richa, and they can always connect with you for personal reading of their patris or horoscopes and all of those things, and then they can understand and learn more about astrology. Yes. That is anytime. All are welcome. Anytime. Okay. Nice talking to you, Prerna. It was a pleasure. Dr. Thank you. Yes. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. All the best to all of you. Yes.